Assalamu alaikum and a very good day to one and all. Hope you all are keeping well by the grace of Almighty Allah. May these hard times get over soon. So today we begin with your science and technology practical. Okay, so this is the book what you have to purchase. This is a government practical notebook. This you have to purchase. Okay, when you open this up, you have index of this type. So this is your index. This is numbered as page number 1. Whatever practicals are shown to you all, जो भी practical आपको बताया जाएगा आप लोगों को वही practical attend करना है, उस पर वो डेट आनी चाहिए. अगर ये वीडियो आपके पास जिस दिन आ रहा है उस दिन आपका वो डेट जो है आपका प्रैक्टिकल का डेट आएगा. ठीक है. दिस आर द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ योर पार्ट 1. ये पार्ट 1 के सारे प्रैक्टिकल्स हैं, टोटल 12 हैं. इसमें से आप लोगों को जो है कुछ ऐसे हैं जो आप लोग घर पे कर सकोगे, वो हम बता देंगे. बाकी के जो है ना हम आपको यहीं बताएंगे करके लैब में, तो आप लोग इसको इजीली नोटिफाई कर सकते हो. ओके. Now you have part 2 practicals. First I'll begin with your part 2 practicals. This is on page number 33. Okay, this is the index to study mitosis meiosis. अभी हम लोग जो है वो sequential नहीं जाएंगे. हम लोग जो है वो कैसे जाएंगे, हम लोग जिस पर्टिकुलर फॉर्मेट में चीज़ें अवेलेबल हैं उसको देखते हुए हम लोग आगे प्रैक्टिकल करेंगे. ठीक है. अभी आप लोगों का फर्स्ट जो है स्टडी ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस. दिस इज़ रिलेटेड टू सेल डिवीजन. सेकेंड जो है बाइनरी फिशन इन अमीबा एंड बडिंग. दिस इज़ रिलेटेड टू योर लाइफ साइकिल पार्ट 1, लाइफ साइकिल प्रोसेसेस पार्ट 2. उसमें रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है उससे टू स्टडी द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन हिबिस्कस फ्लावर. This we'll do now. To study human reproductive system, this we will do now. Okay, so I will show you how you will open up the flower and study the reproductive part. Okay, first and foremost you should know what are the different parts of the flower. I'll show you the flower now. This is your practical 3. ठीक है. To study the reproductive system of a hibiscus flower. इसके लिए आपको चाहिए flower. This is your flower. This is pink in color. You get it in red color also. This is commonly called as shoe flower. Okay. Basically used in gardens for enhancing the beauty of gardens. Now when you see this flower, you can see a green color part over here, small leaf like structures here. Okay, then this green part, then this pink commonly called as petals, then this elongated tube like structure, and on this elongated tube like structure you can see this fine rod shape, very thin hair like structures on which round dots are there. This 1 2 3 4 5 up at the top here. 1 2 3 4 5. Miss, can I have a pointer or a needle? Needle वगैरह कुछ है तो we'll study that. See, now this part I'm speaking of. 1 okay, this and this. This is 1 2 3. This is the 4th one and this is the 5th one. Basically if you see the number of petals, 1 2 3 4 and 5. Okay. तो ये फ्लावर है आपका. अभी लेबल द फॉलोइंग डायग्राम. लेबल द फॉलोइंग डायग्राम में आपको यहाँ पे मार्किंग दी हुई है लेकिन लाइन एक्सटेंड नहीं हुई है. मिस पेंसिल है आपके पास?
दीजिए प्लीज़। यहाँ पे आपको इसको एक्सटेंड करके यहाँ तक ले जाना है और यहाँ लिखना है आपको गाइनेशियम। गाइनेशियम इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। अभी ये जो है वो किसको बता रहा है, ये जो साइड में स्ट्रक्चर्स हैं जिन पे येलो डॉट है, ये दिस इज़ एंड्रोशियम। ओके, नाउ दिस ग्रीन कलर स्ट्रक्चर ये बता रहा है ना, दिस इज़ योर कैलिक्स। ओके, अभी ये जो है दिस इज़ petals, also called as corolla. Calyx also called as sepals. Now this is your thalamus. ठीक है, now I'll just take the help of one miss and I'll show you how to open up this flower. मिस ज़रा यहाँ आइए, इसको ऐसा पकड़िए, हम खोल रहे हैं फ्लावर को। हाँ, ऐसा पकड़िए। दिस इज़ योर फ्लावर। ओके, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ कॉल्ड एज peduncle. Peduncle or the part by which the flower is attached to the plant. Now we see two green structures. यहाँ पे दो ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक ये और एक ये एक एडिशनल पार्ट है, इसको कहा जाता है एपिकैलिक्स एंड दिस इज़ योर कैलिक्स। अभी आप देखोगे तो एपिकैलिक्स भी आपको कितनी नज़र आएंगी, 5. आई विल काउंट इट एंड आई विल शो इट टू यू। 1, दिस इज़ 2, आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम योर विच इज़ ओके, आई विल स्टार्ट फ्रॉम योर 1, 2, 3, 4 and 5. ओके, now we have to see the reproductive part. तो हमको क्या करना है, हमको स्लोली इसको रिमूव करना है। ठीक है, हमने इसको निकाला, धीरे से टेयर ऑफ किया है। टेयर ऑफ करने के बाद ये हमने अभी इसका कैलिक्स ओपन किया है पूरा ऐसा। अब ये फ्लावर को कहा जाता है, इट इज़ हैविंग पेंटामरस सिमेट्री। पेंटामरस मीन्स पेंटा इज़ 5, सिमेट्री मीन्स इट कैन बी डिवाइडेड अलॉन्ग विद द 5 एक्सिस। सिमेट्री मालूम है आप लोगों को। ये देखो, एक पेटल, स्लोली मैंने पिल किया, सेकेंड पेटल, इसको कोरोला भी कहते हैं। दे आर बेसिकली ग्रीन इन दे आर बेसिकली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। कैलिक्स ग्रीन कलर का होता है और वो क्या करता है, फ्लावर को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और ये जो है कलरफुल रहते हैं ताकि वो इंसेक्ट्स को इनवाइट कर सकें फॉर पॉलिनेशन। अब ये जो हमने निकाला है इसके अंदर होगा ओवरी। ओके, बेसिकली द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये जो है, इस बुक पे दिखा लिए, ये जो आप लोगों का लॉन्ग ये पार्ट है विथ डॉट, दिस इज़ कॉल्ड एज स्टेमन। ठीक है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में नीचे 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 हम डायग्राम जो बना रहे हैं ये ऐसे रहता है। ओके, ऐसा, दिस इज कॉल्ड एज कार्पल। स्टेमन is the male reproductive organ and carpel is the female reproductive organ. इसमें क्या होता है, फिलामेंट, ये जो डंडी जैसा स्ट्रक्चर है जिससे ये अटैच है यहाँ पर, इसको कहते हैं फिलामेंट। और ये डॉटेड स्ट्रक्चर जो है ये है आपका पॉलन ग्रेन्स। ओके, और ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर है बल्ब शेप, इसमें रहती हैं ओवरी। इसको कहते हैं स्टाइल और इसको कहते हैं स्टिग्मा। ठीक है,
तो मेल reproductive part is made up of filament and pollen grains. These pollen grains are actually stored in pollen sacs. Okay, and stigma is there on which pollen grains come and settle. यहाँ पे आके pollen grain settle होता है, फिर स्टिग्मा ओपन अप होता है, और ये जो स्टाइल है लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसके थ्रू जो है पोलन ग्रेन्स ट्रैवल करता है, और यहाँ पे जो है ओवरी में होता है ओव्यूल्स, यहाँ पे जाके पोलन ग्रेन्स फ्यूज़ होता है. तो ओवरी स्टाइल स्टिग्मा इज जॉइंटली कॉल्ड एज कार्पल. फिलामेंट एंड पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एज स्टेमन. Carpel is the female reproductive part of the plant and stamen is the male reproductive part of the plant. Okay. Now we'll see how we can detach it. अभी यहाँ हम देखेंगे कि इसको हम ऐसे ही निकाल सकते हैं. एक स्लाइड दीजिए मिस. ठीक है. पोलन ग्रेन्स जब आप लोग इंशाल्लाह आएंगे स्कूल में तो हम स्लाइड प्रिपेयर करके आपको बता देंगे. अभी स्लाइड बनानी कैसी है वो आप लोग देख लीजिए ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए स्लाइड बनाना. ओके. दिस इज़ व्हाट योर स्लाइड विल लुक लाइक. अ पीस ऑफ रेक्टेंगुलर शेप ऑफ ग्लास. इसको आपको रखना है और इस पर आपको फ्लावर को टैप करना है. जब आप फ्लावर को टैप करते जाएंगे तो इसमें से पोलन ग्रेन्स जो है ऐसा इसके ऊपर गिरेंगे. अगर हमको नहीं, वो एक्चुअली ऐसे नज़र नहीं आने वाले हैं, हमको इसको हम इसका थोड़ा सा मैग्नीफिकेशन बढ़ा रहे हैं. ठीक है. आई विल टेक द अदर फ्लावर, आई विल जस्ट टैप इट, और व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन जस्ट टेक इट एंड मैश इट डाउन. इसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे हम हाथ से. ये पार्ट्स दिख रहे हैं, इसको हमको फाइन स्ट्रक्चर लेके थोड़ा सा टैपिंग करके इसको ब्रेक करना रहेगा इसी तरह. ओके. एक्चुअली आप लोगों को पेंसिल वगैरह का यूज़ नहीं करना है, बट अभी इमरजेंसी में हमारे पास कुछ नहीं था ये. और इसके ऊपर हमको डालना रहेगा ग्लिसरीन, अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन. कवर ग्लास प्लेस करना रहेगा एंड देन वी कैन सी इट अंडर माइक्रोस्कोप. ओके. क्लियर. वी विल सी हाउ विल ओपन अप दिस गाइनेशियम पार्ट. मिस ज़रा पकड़िए प्लीज़. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. ये अभी फिलामेंट और पोलन ग्रेन्स आप लोगों के लिए क्लियर हो गया है ना. अभी इसको मैं ग्रेजुअली ओपन करूँगी. हमको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा वरना ये टूट जाता है. ओके. This I have removed everything. Now gradually देखो इस पार्ट का जो पिंक कलर गायब हो रहा है, वाइट कलर दिख रहा है. दैट इज़ योर स्टाइल. योर मीन्स फ्लावर का स्टाइल. Can you see a fine thread-like structure? So this will be till here, continuing till here. Okay. Trying to just break it down from here. निडल्स वगैरह रखने की लंबी से आपको मैंने बोली है. इसके अंदर फाइन स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा. दिस इज़ व्हाट योर स्टाइलिश. ठीक है. इसको मैंने ओपन किया है. सभी लाइव धागे थे सही बारीक. तो इस तरह से ये विजिबल हो जाएगा ग्रेजुअली. ये देखिए ये जो है ये आपका गाइनेशियम. ये जो है डॉट डार्क पिंक डॉट्स हैं ये आपका स्टाइल है, स्टिग्मा है. और ये फाइन वाइट ट्यूब जो है वो आपका स्टाइल है. वो कंटिन्यू करता है टिल ओवरी. ठीक है.
और ओवरी को हम थोड़ा सा ओपन कर रहे हैं. वी आर ओपनिंग इट अप ग्रेजुअली. Because it's a bit moist, it's slippery, so we need to be a bit careful with it. Actually, I've already broken it down. It has got separated. Okay, you can see this. This is what your ovules are. Okay, दिखा ये पार्ट, राउंड कलर का स्ट्रक्चर छोटा सा, ये आपका ओव्यूल है. क्लियर है? तो इस तरह से आपको ये फ्लावर को स्टडी करना है. इसमें आप लिखोगे कैलिक्स 5 ग्रीन सेपल्स. फंक्शन क्या है इसका? फोटोसिंथेसिस, टू मेक फूड फॉर द फ्लावर. कोरोला अगेन 5. ओके, दे आर कलरफुल. यहाँ पे आपने पिंक कलर देखा है, आप इसका रेड कलर भी लिख सकते हो. पिंक एंड रेड, एनी कलर फ्लावर यू कैन गेट एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लावर. फिर क्या है? इट्स फंक्शन इज टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर pollination. ओके, देन इन्यूमरेबल स्टेमेंस हम लोग ने देखा था. इन्यूमरेबल क्यों बोलते हैं? दे आर मैनी. See, when you see this, these are many stamens. Okay, anthers, and to produce pollen grain function is given. Gynoecium again 5. Number of components 5 है. 1 है gynoecium. 5 उसके क्या हैं? ओपनिंग्स हैं. बट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्पल. ये और क्या है? टू प्रोड्यूस ovules. Okay, this is how you'll go about. Androecium from flower is male valve, while gynoecium is a female one. Male gamete from the pollen grain and egg cell from the ovule. These two haploid cells unite to form a diploid zygote. Thus the process of seed and fruit formation begins. Flower is the reproductive organ of plant. Okay, now your dash and dash are essential word. Essential means important. Androecium and gynoecium आएगा. क्यों? Calyx and corolla are essential. They are not essential, they are accessory verbs. Accessory means they are not helping in the process of reproduction, but they are just playing a side role. Like dash is not a unisexual flower. Dash is not unisexual flower. Which is not a unisexual flower? Gulmohar. Process of union of male gamete with egg cell is called as fertilization. Okay, second male gamete unites with 2 pair of nuclei to form what? One forms zygote, the other one forms the endosperm. After fertilization, they develop into seed. Endosperms develop into seed and ovary. यहाँ पे आएगा एंडोस्पर्म, यहाँ पे आएगा ओवरी. Sorry, here it is ovary develops into seed and here it will be the endosperm which will be develop into fruit. Okay.